Constitution of India. For introduction of GST in India, lots of changes were required in Constitution of India. Mainly 4 articles in Constitution need to be studied. कौन से 246A, 269A, 366 and 279A. सबसे पहला 249A. CG and every SG, CG central government, SG state government have simultaneously power to make laws with respect to CGST and SGST, UTGST for intra-state supply. CG has exclusive power to make law with respect to IGST for interstate supply. 5 petroleum product: petroleum crude, high speed diesel, motor spirit, natural gas, aviation terminal fuel would be covered under the ambit of GST from that date, which will be recommended by GST Council. ये अभी इसके लिए रेट नहीं वो किया गया, जीएसटी इस पे लगने लगेगा। जीएसटी काउंसिल इस पे जब जीएसटी जाएगी तो जीएसटी लगने लगेगा। आर्टिकल 269A. As stated earlier, CG has executive power to make law with respect to IGST on interstate supply. इंटरस्टेट सप्लाई पे क्या लगेगा? IGST लगेगा. IGST will be payable to CG. The CG will return 50% amount on the balance. 50% shall be transferred to consuming destination state government or retained by CG in different pocket in case where destination is a state. IGST 50% रखेगा CG और 50% डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स को दे देगा, डेस्टिनेशन बेस्ड स्टेट गवर्नमेंट को दे देगा। आर्टिकल नंबर 366. GST means a tax as goods services excluding tax on alcoholic liquor or human consumption. GST means क्या है? अ टैक्स है किस पे? गुड्स और सर्विसेज पे। किसको एक्सक्लूड किया गया है? अल्कोहलिक फॉर लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उसे एक्सक्लूड किया गया है। गुड्स, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी विल बी कॉल्ड एज गुड्स. सर्विसेज, एनीथिंग अदर देन गुड्स विल बी ट्रीटेड एज सर्विसेज. ऑल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन. Article number 279A. GST Council. Where industry demand any changes in law, it is approach GST Council for the same. Such matter is discussed in GST Council. After discussing if favorable voting percentage is 75% or more weighted, then the proposal recommendation is sent to the Parliament. Every decision of the Goods and Services Tax Council shall be taken at a meeting by a majority of at least 75% of the weighted vote of the member present, and voting of the central government shall have a weighted percentage, and voting the vote of the central government shall have a weighted of 1/3 of the total votes cast, and the vote of all the state government taken together shall have a weightage of 2/3 of the total votes cast in that meeting. After that, a formal notification is issued for the same. Now the change will be effective for industry and government. 50% of the total member of the number 50% of the total number of member of the
Goods and Services Tax Council shall constitute the quorum at least meeting. जीएसटी क्या है? हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स मैंने पहले ही बताया आप लोग को, इंसिडेंट एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन डिफरेंट पर्सन, इसे क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, तो जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स मीन्स अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, except taxes on supply of alcoholic liquor for home and consumption, Article 366(12)(a) of Constitution of India के according. It is a value-added tax levy on of goods or services or both. ये क्या है? एक value-added tax है। ये क्या है? एक destination based tax है। फाइनल कंज्यूमर के ऊपर बर्डन पड़ता है, फाइनल कंज्यूमर के ऊपर पड़ना पड़ता है। और एक ये क्या है? जीएसटी ऑफर कम्प्रहेंसिव एंड कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट मिलता रहता है इसमें। जीएसटी एलिमिनेट कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। जीएसटी ब्रिंग यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर ऑल ओवर द इंडिया। अब इसके फीचर देखते हैं हम लोग। फीचर में क्या है? सबसे पहला, एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। जीएसटी क्या है? एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। इसमें क्या होता है कि जब भी जीएसटी लिया जाता है, तो अगर जीएसटी का परसेंटेज है 5, तो इसमें से 50% सीजी को जाता है और 50% एसजी को जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। टैक्स ऑन कम्युनिटी एंड सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स लगता है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर टैक्स लगता है, जब गुड्स सेल होता है या परचेस होता है उस पर टैक्स लगता है। शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, इसमें बर्डन शिफ्ट किया जाता है फाइनल कंज्यूमर के ऊपर। नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच, ये डायरेक्टली पिंच नहीं किया जाता है, इनडायरेक्टली पिंच किया जाता है। जो टैक्स पेयर होते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि वो लोग टैक्स पे कर रहे हैं। अगर हम लोग बिस्किट खरीद रहे हैं, तो वो जो प्राइस होगा, अगर 5 रुपए के बिस्किट खरीद रहे हैं, जो प्राइस होगा उस पर ऑल टैक्सेस इंक्लूड होते हैं। इसलिए इस पे ये क्या है? नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच। इन्फ्लेशनरी है, ये प्रोडक्ट के प्राइस, कमोडिटी के प्राइस पे डिपेंड करता है। वाइडर टैक्स बेस, मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स गुड्स होते हैं या सर्विस होते हैं। प्रमोट सोशल वेलफेयर, इसका मतलब है कि सोशल वेलफेयर को प्रमोट किया जा रहा है। जो चीज नुकसानदायक है उसमें ज्यादा जीएसटी लगाया जा रहा है कि वो कम खरीदा जाए। रिग्रेसिव इन नेचर, जो भी होता है फिक्स होता है। रिग्रेसिव मतलब फिक्स। ये लोग अमीर हैं या गरीब हैं इसके ऊपर नहीं डिपेंड करता है। अमीर भी वही टैक्स पे करता है जो गरीब पे करता है टैक्स।